Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of EduCamp. In the series of YouTube discussion upon the topic on public administration, let us start very important topic of public administration, what is called the new public management. The new public management, as you know, that is the very important topic in evolution of public administration as a discipline. तो जब इवोल्यूशन हो रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमने देखा कि उनको स्टेजेस में डिवाइड किया. फोर्थ स्टेज इज सेड टू बी द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, और उसी के बाद फिर लोगों ने हनी रिपोर्ट आए, उसके बाद फिर मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुआ, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केम इन. बट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैविंग सम लिमिटेशन. A limitation was that they concentrated much more upon the bureaucracy. They regarded bureaucracy as change agent. And at that particular time, there was neglect of the market. The state choice has become very important than the public choice. और उसके बाद जब हमने इवैल्यूएशन किया तो ये पता चला हमें कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गेटिंग रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज स्टेट चॉइस जैसे ही इंटरवेंशन करना शुरू किया, देन पब्लिक चॉइस इज गेटिंग अंडरमाइंड. इसी बीच में पब्लिक चॉइस पर्सपेक्टिव का एक अप्रोच आया दैट हैज बीन गिवन बाय विंसेंट ऑस्ट्रम. अब विंसेंट ऑस्ट्रम का ये मानना था कि इफ यू वांट टू एम्पावर समवन, देन एम्पावर पीपल. You should have work upon market. You should work upon the debureaucratization, decentralization and democratization. तो इसी बेसिस पे हमने एक नया रिजीम को क्रिएट किया, एंड दिस रिजीम केम इनटू बीइंग in Canada under the CAPM summit, and this particular paradigm is called the new public management. तो और इसी के बारे में जानते हैं what is the focus of the new public management. So this is the focal area of new public management. Basically, new public management is going to work upon the 5 important areas. What is the mentioned in your sheet, right? So mentioned in here. तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं 5 important areas are there, and this is the first important area, what is called the performance appraisal. Performance appraisal का मतलब ये हुआ कि this is result oriented, not input oriented, but is based upon the output oriented. आज के बाद जो भी strategy हम बनाएंगे, that would be based upon the performance appraisal. पहले क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, बट नाउ दिस टाइम द परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट. परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी विल बी मेजर्ड, एंड देन based upon the performance accountability, we will have to extend our services, we will have to extend our strategy in consistency, right? Second fact is the very very important, what is called the cost cutting in bureaucracy. एनपीए का यही अप्रोच था पहले कि हम ब्यूरोक्रेसी पे हम पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे एंड इनको एम्पावर करेंगे. ब्यूरोक्रेसी को इतनी एम्पावरमेंट हम देंगे थ्रू द अथॉरिटी, थ्रू द रिसोर्सेज, थ्रू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थ्रू द पर्सनल मैनेजमेंट, कि ब्यूरोक्रेसी हैज टू टेक ऑल द डिसीजन टू फुलफिल द एक्टिविटीज टू द पीपल ऑफ द स्टेट. बट बाद में पता चला कि ब्यूरोक्रेसी का एक्सटेंशन इज नॉट द गुड कॉन्सेप्ट फॉर द गवर्नेंस. So it is better to have bureaucracy should concentrate upon the core area, and all the peripheral areas should be given to market. And so we have to say cost cutting in bureaucracy. Cost cutting in bureaucracy को तुम ऐसे समझ सकते हो कि पहले अगर हमें रोड चाहिए था तो हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाते थे. आज हमें रोड चाहिए तो हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अब नहीं बनाएंगे. हम देखेंगे कौन कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहा है हम उसी को आउटसोर्स कर देंगे, वो रोड बना देगा. So this is important fact, and so you can say cost cutting in bureaucracy is related to contractualism. Contract से related matter को ये deal करता है, right? The third important, what is called the user pay basis relation. User pay basis relation is related to consumerism. जैसे अब तक के हमारा स्टडी में ये रहा कि स्टेट एंड सिटीजन दो इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड सिटीजन. तो स्टेट एंड सिटीजन के बीच में जो रिलेशनशिप वो कैसा था, दैट इज कि ये स्टेट एक राजा टाइप का है और सिटीजन एक प्रजा टाइप का. लेकिन अब ऐसा नहीं है. सिटीजन शुड बी रिगार्डेड एज कंज्यूमर, कंज्यूमर की तरह इसको देखिए, और स्टेट शुड रिगार्डेड एज सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगा. दोनों के बीच रिलेशन होगा यूजर पे बेसिस. इट मीन्स
कंज्यूमर ने पैसा दिया, टैक्स दिया, आप उनको सर्विसेज दीजिए. दैट इज द फैक्ट. इट इज कॉल्ड द कंज्यूमरिज्म, राइट. तो कंज्यूमरिज्म का जो सूत्र है, दैट इज द फोकल एरिया ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. The fourth important focal area is called the quasi-market approach. Quasi-market approach का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मार्केट का प्रोविडेंस है. मार्केट एंड एस्टेट शुड कंटिन्यू. जस्ट लाइक LIC अगर यहाँ पर है तो LIC के साथ में मैक्स बूपा भी होना चाहिए, राइट. यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी होने चाहिए, सन लाइफ तो बिरला सन लाइफ भी होने चाहिए, राइट. तो अगर आपने MTNL एज ए स्टेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है तो साथ साथ में एयरटेल भी, वोडाफोन भी ना, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर भी होने चाहिए. स्टेट एंड मार्केट दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे स्थिति में स्टेट को एक इंपॉर्टेंट अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड स्टेट मिनिमलिज्म. स्टेट का इंटरवेंशनिज्म अगर मार्केट के सेक्टर्स पे रहता है, देन एंड देयर आफ्टर मार्केट विल नॉट ग्रो विद अ हेल्दी कंपटीशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अप्रोच ऑफ स्टेट मिनिमलिज्म के स्टेट का रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. मार्केट का रोल आप एक्सटेंड कीजिए. ऐसा नहीं है अकाउंटेबिलिटी छोड़ देना है, ये है कि आप अपना रोल को एक स्ट्रेटजिक एरिया में, एक फिक्स्ड एरिया में मेंटेन करें, फैसिलिटेशन की तरह आप काम करें. यू आर द फैसिलिटेटर रादर देन कंट्रोलर, राइट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज कॉल्ड द मैनेजरियल ऑटोनॉमी. मैनेजरियल ऑटोनॉमी एक मैनेजरियलिज्म का कॉन्सेप्ट. पहले हम लोग क्या करते थे, मैनेजमेंट को बिल्कुल कंट्रोल्ड फॉर्म में रखते थे, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में रखते थे. आज ये चीज खत्म हो गई. इट शुड बी गिवन टू डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी प्रमोटेड and management should be given the autonomy to take the decision with respect to getting innovation in project management. The innovation, creativity, other important area of the development, जो भी होगा वो मैनेजरियल ऑटोनॉमी से पॉसिबल है. अगर मैनेजमेंट को हम ऑटोनॉमी देते हैं तभी हम मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस अप्राइजल के बेसिस पे एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि सॉलिड एविडेंस के साथ में हम डील करते हैं उनके परफॉर्मेंस एक्टिविटीज को. सो बेस्ड अपॉन दैट दीज आर द 5 फोकल एरियाज ऑफ NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. तो आज ये 5 इंपॉर्टेंट जो फोकल एरिया है, तो व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहते हो यहाँ पे कि क्या दिस इज द 100% द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हियर? नहीं, ऐसा नहीं है. इस NPM को तो हमने एक्सेप्ट तो किया, बट 40% कंट्री, जो भी हमारे पास 40% कंट्री जो एक्सेप्ट किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. कहीं ना कहीं इस पैराडाइम में कुछ चैलेंजेस हैं. तो क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या उसके बाद होता है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर सीरीज में. तो चलो ये कंटिन्यू करते रहना तुम लोग एंड थैंक यू वेरी मच. Do automatically continue the discussion class. So thank you very much. Bye-bye.